यहाँ पे ना एक म्यूज़ियम है, इसे राइजन कहते हैं, राइज एन वाई न्यूयॉर्क। और ये बहुत ही मज़े का म्यूज़ियम है, ब्रॉडवे पे के करीब है, और सामने एक ब्रॉडवे म्यूज़ियम भी है, और ये है टाइम स्क्वायर में। और यहाँ से टिकट मिलता है $47 का, और उसके बाद फिर आप जाते हैं ऊपर। ये देखें, सेकंड फ्लोर से ये स्टार्ट होता है। तो अगर तो आपके पास कभी आपको आने का मौका मिले तो आपने ये राइजन एन वाई ज़रूर देखना है। राइज एन वाई। जब आप राइज एन वाई में दाखिल होते हैं तो ये फ़र्स्ट हॉल आता है। तो ये अब आपको एक प्रॉपर ट्रेन बनाई हुई इन्होंने। ये देखें, मैं सेकंड फ्लोर पे आया और ये सामने हॉल है जिसके अंदर से दाखिल होना जाता है, और उसके बाद ये सीट्स हैं पुरानी ट्रेन जैसी, और आप उसके ऊपर बैठ जाएं। Afterwards, you guys can go through 7 exhibitions of what makes New York City what it is, from past, present, and future. And last but not least, what you guys have to be here for, will be the observation deck by S5 Studio. So a few things to keep in mind, guys, that this ride, this film is 6 minutes long. The ride itself is going to be about 6 minutes long. So the exhibition part is entirely up to you. You can decide how fast or slow you like to walk. But keep in mind, guys, that needs to go. The ride will not be 5 minutes after this. It won't be 10 minutes after this. It'll be the very last thing that you guys are doing. I'll be outside if you need me, so you can go, guys. On October 27, 1904, at 2:35 p.m. precisely, in a gleaming new हम subway एक ही जगह पे बैठे हुए station, 30 feet हैं, below सामने City Hall, स्क्रीन है, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे हम ट्रैवल कर रहे हैं। son of the famous Civil War general, officially opened the first subway in New York. Recklessly throttling the first train up at full speed, racing uptown underground, towards a sleepy district 4 miles to the north, where the New York Times was just completing its brand new 22-story headquarters. At the foot of an hourglass-shaped crossroads, the city had renamed Times Square, and the papers on it. The most famous, vibrant, and thrilling urban district on earth, where by 1876 passers-by stared up in wonder at the giant arm of an unfinished Statue of Liberty, still looking for funds and something to stand on. But it was in the next 3 decades that New York City would finish coming into its own on a spectacular scale, as millions upon millions of immigrants poured through the harbor and onto the streets of a city that by 1882 had become the first on earth to be lit by electricity. And that as the clock struck midnight on December 31st, 1898, dramatically expanded its borders literally overnight to encompass a vast 5-borough metropolis, connected to itself by 1904 by what would become the largest subway system in the world. On New Year's Eve that same year, confirming its status as the new throbbing heart of the greatest city in America, immense crowds gathered in Times Square for the first time, for a publicity stunt dreamed up by the publishers of the New York Times, counting down the seconds to the stroke of midnight. From then on, New Yorkers, and soon much of the rest of the world, would ring in the new year with a delirious celebration in Times Square. And it was only the beginning. In the years to come, the astonishing mix of creative energies in New York, black and white, immigrant and native born, Jewish, Italian, Irish, African American, and Anglo-Saxon, would burst into glorious expression as a new and distinctively American kind of culture, brash and vital, electric and pulsing, now began to come into its own. I found the third button from Times Square. I'm saying hello to Broadway. Just as New York City itself was lifting straight up into the skies, becoming the world headquarters of a new kind of modern mass culture, consecrated to everything air-minded and upwardly mobile, air travel. जो ही शो ख़त्म हो जाता है सामने, तो उसके बाद ये ट्रेन का दरवाज़ा सा खुल जाता है, और उसके बाद अब हमने ट्रेन के अंदर दाखिल होना है। तो ये मज़ेदार शो है, बहुत ही मज़ेदार है।
कि पहले उन्होंने वो ट्रेन दिखाई और उसके अंदर आप स्क्रीन के ऊपर चढ़ गए और उसके बाद एक ट्रेन का दरवाज़ा टाइप खुल गया जैसे मेट्रो का होता है और उसके बाद आप अंदर दाखिल हुए। तो ये मज़ेदार सी जगह है यहाँ पे ये बर्ड्स और बाकी बहुत अच्छा इन्होंने क्या एम्बियंस क्रिएट किया है। अब ये देखेंगे इसका ऊपर से दरख्त है आर्टिफिशियल बर्ड्स की आवाज़ें आ रही है। ये ओल्ड जैसा था मैनहट्टन। ये पुराने पेपर्स हैं। ये पुराने ज़माने में एलिवेटर्स थे इस टाइप के, ये लकड़ी के एलिवेटर्स बनते थे। ये देखिएगा, हाँ ये उस ज़माने में इस टाइप की लिफ्टें बनती थी। और इसकी वजह से फिर ये जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, स्काई स्कैपर्स हैं, वो बने, क्योंकि ये इस बंदे का कमाल था कि इसने ये एलिवेटर बना लिया था जिससे ये हाई राइज बिल्डिंग्स बनना शुरू हुई। इसके ज़रिए मटेरियल ऊपर तक पहुंचाना आसान हो गया था। फिर ये स्काई लाइन डेवलप हुई इसकी 80s में एंड 90s में। ये फिर हाई राइज बिल्डिंग्स हैं सारी। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है। ये सब कुछ ज़माने में फिर डेवलप हुई सारी। एक छोटी सी इन्वेंशन जो है देखें कितना मेजर रोल प्ले करती है। तो ये सारी जो आपको तस्वीरें नज़र आ रही हैं इस वक्त, ये सारी एक छोटी सी इन्वेंशन का कमाल था कि एक बंदे ने एलिवेटर बना लिया कि जिससे आप मटेरियल को ऊपर पहुंचा सकते हैं। और ये टीवी एंड रेडियो का सारा सिस्टम, क्योंकि ये याद रखिए बिजली यहाँ न्यूयॉर्क से स्टार्ट हुई थी। ये लाइट्स जो थी एडिसन ने यहाँ पे जलवाई थी सबसे पहले। ये टेस्ला जो होता है, टेस्ला बंदे का नाम था ल्यून टेस्ला, जिसने यहाँ पे आके बैटरी बनाई थी, यानी निकोला टेस्ला। और इसने ये कार बनाई जिससे ये सारा बिजली का सिस्टम, और फिर उसके बाद सारी इन्वेंशंस हुई। और फिर मास मीडिया सारा क्रिएट हुआ। ये देखें सारे रेडियो, और उसके बाद ये पहले इस तरह स्क्रिप्ट लगता होता था सामने इस चेयर पे बैठ के। ये पुराने रेडियोस इस दौर में रेडियो देखें एक दो। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि जो मेरी जनरेशन है इसने फ्रॉम द स्टोन एज टू AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुँचे हैं। तो हम लोग जो हैं वो स्टोन एज से यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारी ज़िंदगी में रेडियो भी था, ब्लैक एंड वाइट टीवी भी था, फिर टीवी भी था, कलर टीवी भी था, और बाकी सब भी, और उसके बाद सब कुछ। और उसके बाद आप देखें सारा, फिर हमारी जनरेशन के अंदर कंप्यूटर आया, फिर सोशल मीडिया आया, फिर उसके बाद ये गूगल आया, फिर अमेज़ॉन आया, फिर ये हर चीज़ जो है ना ऑनलाइन आपने ऐप्स आई, फिर आईफोन आया टच स्क्रीन जो है, फिर उसके बाद अब जो है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारी जो जनरेशन है वो कितनी एक्सपीरियंस्ड है। ये स्टोव्स शुरू के जब ये बने थे इस टाइप के होते थे, ये भी मैंने देखे हुए, ये भी हमने लगाया हुआ था अपने घर के अंदर, इस टाइप की सारी चीज़ें। तो ये सब चीज़ें मेरे लिए नई नहीं है, लेकिन मेरी जो नई जनरेशन है शायद तो उसके लिए बिल्कुल नई हो, कि वो अंडरस्टैंड ही ना कर सकते हो इन चीज़ों को। ये वो सारे लोग जो पुराने ऑल इन द फैमिली,
और ये वो लोग हैं जो रेडियो और टेलीविज़न पे काम करते होते हैं, जो पुराने शोज़ हैं। ये पुराने शो, पुराने टेलीविज़न प्रोग्राम्स, और फिर ये शुरू के थे बहुत, इन्होंने बड़ा कमाल किया था। ये इस टाइप के ना बच्चों के पपट शोज़ आते होते थे, अब वो ख़त्म हो गए हैं सारे, लेकिन उस समय पपट शोज़ आते होते थे। ये बहुत ज़्यादा पपट शोज़ चलते थे। अब देखिए ये अभी भी बच्चों को एक देखा जाता है सारा। ये वो पुराने सोफे शोज़ के पूरे सेट्स हैं, मैडमैन, पावर, ये अब ये ड्रेसिंग की सारी यहाँ पे स्टार्ट हुई इंडस्ट्री न्यूयॉर्क के अंदर। ये देखें, ये इंडस्ट्री प्रॉपर डेवलप हुई और फैशन स्टार्ट हो गया 1920 में, 1950 में ये सारा। ये देखिए सारे उस ज़माने के ड्रेस, वो सामने मशीन है जिससे ये कपड़ा बुना जाता था। तो इस टाइप के बहुत ज़्यादा काम न्यूयॉर्क के अंदर हुए। तो न्यूयॉर्क की ये प्रॉपर पायनियर है फैशन इंडस्ट्री में भी। ये उसमें बहुत ज़्यादा दर्जी होते थे, फिर ये यहीं से ये जो रेडीमेड कपड़े हैं वो शुरू हुए। ये देखिए बीटल्स, इन्होंने बड़ा कमाल किया था। ये एक म्यूज़िक बैंड था जो बहुत ही मशहूर था, और यहाँ से एक थ्योरी स्टार्ट हुई थी 10,000 आवर्स की। ये लोग थे जिन्होंने 10,000 घंटों में सिर्फ बार्स के अंदर म्यूज़िक चला के ये एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया। और उससे पता चला कि अगर आप 10,000 घंटे कोई एक काम कर लें तो आपकी कामयाबी के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो आप कामयाब हो जाते हैं। ये पब्लिक लेटर्स हैं। तो ये म्यूज़िक जो था ना, ये भी यहाँ से जो वो स्टार्ट हुआ प्रॉपर, जो पब्लिक म्यूज़िक होता है ना, आप म्यूज़िक बजा के पैसे कमा सकते हैं। गिटार, ये वो सारे इस टाइप के म्यूज़िक बैंड्स मुख्तलिफ टाइप के होते थे, एक वक्त था। ऊपर जो है ना फिल्म्स का है सर। ये देखें रिकॉर्ड का सिस्टम, ये भी मैंने देखे हुए हैं। अब ये देखें हमारी जो जनरेशन है उसमें कितनी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन है। ये सारा फिल्म का दौर है ऊपर। न्यूयॉर्क जो ना, हर चीज़ जो मॉडर्न वर्ल्ड की है ना, वो न्यूयॉर्क से स्टार्ट हुई है। ये ध्यान में रखें आप, ये मार्केट थी हर चीज़ की। तो देखिए फिल्म में You don't get anywhere in this world by waiting for what you want to come to you. Make it happen. पॉपकॉर्न्स भी यहाँ से स्टार्ट हुए हैं। फिल्म के दरम्यान पॉपकॉर्न्स का ना न्यूयॉर्क के अंदर है, और आगे स्टेज है ब्रॉडवे की तरफ खुलेगा। ये पुराने ज़माने में इस टाइप की होती थी फिल्में। ये रील्स ही होती थी, बनती थी, और उसके बाद फिर ये चलती होती थी स्क्रीन पे। ये देखें इस तरह।
ये स्टेज ड्रामे जो थे ना सारे, उनको इन्होंने दिखाया हुआ स्टेज ड्रामे, कैसे स्टेज बनते थे और ये सब कुछ होता था। लायन किंग, ये अलादीन, बड़ी फिल्म है, हैमिल्टन, विश्व, द लायन किंग जो है ना ये वाला, फैंटम, अब ये जो फिल्में मॉडर्न हुई है ना सारी, ये आगे स्टेज मॉडर्न फिल्मों की है। आप देखें ये पर्दा उठाएंगे ये ना 1957 से लेकर 1958 की जो बजर फिल्में थी बड़ी बड़ी। स्काई स्टूडियो, स्काई स्टूडियो मेरा ख्याल है ये बंद है इस वक्त। ये एक एलिवेटर सा है और ये टॉप से दिखाएगा सारा न्यूयॉर्क। एलिवेटर है उसके ऊपर चढ़ रहे हैं और ये जा रहा है। पुराने ज़माने में जब नए एलिवेटर्स बने थे तो ये 47th मंजिल से पूरी न्यूयॉर्क को, ये मैनहट्टन को दिखाएगा। ट्वेंटी सेवन मंजिल पे है। यस, और उसके बाद ये 27th फ्लोर से दिखाएंगे। ये बेसिकली एक 4D एक अरेंजमेंट है और बैठे हुए हम इन्हीं सीटों पे होंगे, लेकिन ये जो सामने स्क्रीन है ऐसे लगेगा कि यहीं नीचे से ऊपर जा रहा है और एलिवेटर के अंदर बैठे हैं और पूरा टाइम्स स्क्वायर नज़र आ रहा है। ये है सारी कहानी।
tonight, we're dancing in the streets of Times Square. This is Mario Lopez, wishing everyone